आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ए प्लस मैथमेटिक्स में। Welcome you all in mathematics class. So today's topic is parametric equation. Now first of all you should know what is parametric equation. Now what is parametric? When we have two variables x and y, or x is not in term of x and y is not in term of x. x is not in term of y and y is not in term of x. मतलब x के अंदर y ना हो, y के अंदर x ना हो, उस फॉर्म को क्या बोलते हैं? पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं। ठीक है। सो जैसे when the relation between two variables is neither implicit or nor explicit. Now explicit क्या है? Explicit जैसे y equal to sin x, that equation is explicit, and implicit is when y equal to sin of x into y, वो x और y की टर्म अगर एक साथ आ गई है and when you differentiate आप उसको अलग separate नहीं कर पाएंगे, that is known as implicit, right? So when the relation between the variables is not implicit, not explicit, but they both are linked with the third variable, that third variable is known as the parameter, right? And that equation, that form is known as parametric form. ओके उसको हम क्या बोलेंगे? पैरामीट्रिक फॉर्म बोलने वाले हैं, जिसमें दोनों वेरिएबल किसी थर्ड वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करते हैं, राइट? वो डायरेक्ट आपस में डिपेंड नहीं होते। मैं आपको एक क्वेश्चन से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, like you are given that x is equal to 2 into a into t square and y equal to a into t raised to power 4. We need to find dy by dx. So clearly you can see, देखो x के अंदर इस फर्स्ट एक्सप्रेशन के अंदर x है बट y नहीं है, और सेकेंड एक्सप्रेशन के अंदर भी देखो y है बट x नहीं है, बट दे बोथ आर लिंक्ड विद दिस t। जो इनिशियली वह आपके अल्फाबेट्स हैं ए बी सी डी ई एफ, दे आर कंसीडर्ड एज कांस्टेंट, और जो बाद के अल्फाबेट है जैसे पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, दे आर कंसीडर्ड एज वेरिएबल। सो इन दिस केस यू कैन सी एक्स एंड वाई दे बोथ डिपेंड अपॉन टी. So this is parametric, and what is the parameter? Parameter here is t. Now if you want to find dy by dx, now what we are going to do, we will differentiate this x with respect to t, this y also with respect to t, and we will then divide them. आप x को differentiate करेंगे with respect to t, this 2a is constant, we will take it outside, and differentiation of t square will be 2 into t, right? Similarly we will differentiate this y equal to a into t raised to power 4, this a as constant we will take outside, and differentiate this t raised to power 4, whose differentiation will be 4t cube, पावर आ गए, पावर में से एक माइनस. Now if you divide this dy by dt by dx by dt, अगर आप इस सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से डिवाइड करें, then you can see ये dt और dt, देखो ये वाला dt एंड ये वाला dt कैंसिल हो जाएगा, एंड लेट्स बी dy by dx. ठीक है, कैंसिल करना नहीं है, इसको एक्सप्रेस करते हैं वैसे. सो यहाँ से 4a गेट कैंसल, t 1 पावर गेट कैंसल, एंड यू विल गेट आंसर विल बी t स्क्वायर. सो इन ऑल क्वेश्चन वी आर गोइंग टू फॉलो द सेम रूल, सेम मेथड हम इसको अप्लाई करने वाले हैं. हम दोनों को अलग अलग विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर डिफरेंशिएट करेंगे. पैरामीटर जैसे t हुआ, थीटा हुआ, उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर देंगे. यू विल गेट dy by dx. See in this question x and y they both are equal to x equal to a cos theta and y equal to b cos theta. Here parameter is theta, they both depend upon theta, right? So we will differentiate x with respect to theta, right? A is constant, we will take outside, differentiation of cos will be minus sign. Similarly differentiation of y, b is constant, take outside, and differentiation of cos will be minus sign. When you divide these two, means dy by d theta divided by dx by d theta, you will get dy by dx. So dy by dx will be equal to this sin get cancelled, you will get b over a. Okay, so in this way we can differentiate. But now see one more question. You are given that x is equal to 4 into t and y equal to 4 over t. Here again variable is t is the parameter, right? वेरिएबल तो x और y दोनों ही है, वो भी है, ठीक है. तो t is the variable here,
t is the perimeter here. So हम क्या करेंगे, इस x को भी with respect to t डिफरेंशिएट करेंगे, y को भी with respect to t डिफरेंशिएट करेंगे. 4t का डिफरेंशिएट करेंगे, 4 आ जाएगा डायरेक्ट. 1 by x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 by x स्क्वायर. सो 1 by t का डिफरेंशिएशन माइनस 1 by t स्क्वायर. एंड नाउ नेक्स्ट स्टेप, इस फर्स्ट सेकेंड वाले इक्वेशन को we will divide by first equation and you will get this 4 get cancelled, t square comes to the denominator and you will get minus 1 upon t square. That will be your answer. ठीक है, this is your answer. We will divide dy by dt by dx by dt. Again here variable is theta, here perimeter is theta because x और y दोनों ही थीटा पे डिपेंड है. so perimeter is theta. हम यहाँ पर x को अलग डिफरेंशिएट करेंगे विस्पेक्ट टू थीटा, y को अलग डिफरेंशिएट करेंगे विस्पेक्ट टू थीटा. नाउ थीटा डिफरेंशिएशन विल बी 1, sin थीटा डिफरेंशिएशन विल बी cos थीटा. सिमिलरली डिफरेंशिएट y, डिफरेंशिएशन 1 विल बी 0, डिफरेंशिएशन ऑफ cos विल बी माइनस sin, you will get minus a sin theta. बट इन दिस क्वेश्चन आप जब डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद हम आगे फर्दर भी सोल्व करेंगे. This a और a get cancelled and sin theta can be written as 2 sin theta by 2 cos theta by 2. If you remember that Guru mantra, sin to theta is 2 sin theta cos theta. And 1 minus cos to theta, 2 sin square theta. So 1 minus cos theta, 2 sin square theta by 2. This 2 and 2 get cancelled. This square get cancelled by sin theta by 2. Left with cos by sin, which is cot theta by 2. Sometime in exams जो क्वेश्चन आ जाता है वो ऐसा आता है कि नोट कि आपको वी नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ डी बाई डी एक्स. समटाइम क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोट थीटा बाई 2. तो इन दिस केस आपको थोड़ा सा प्रूफ पता होना चाहिए हाउ यू विल सिंप्लीफाई दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन. ठीक है, क्लियर. सी क्वेश्चन नंबर 7. अब ये क्वेश्चन देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, दिखने में ये आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है. हम यहाँ पर देखो क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू फॉलो द क्वोशंट रूल. क्वोशंट रूल लगा सकते हैं यहाँ पर. ठीक है, सबसे पहले हम x वाली टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे. क्वोशंट रूल लगाते हैं. क्वोशंट में क्या था, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में रूट था तो वो स्क्वायर से कैंसिल हो गया. डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर. ये माइनस साइन नहीं आएगा, ये गलती मिसप्रिंट है. माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर. जब हम साइन क्यूब टी का डिफरेंशिएट करेंगे वी विल यूज चेन रूल. पहले पावर रूल लगेगा, इसमें पावर आगे, पावर में से एक माइनस इनटू साइन का डिफरेंशिएशन. सिमिलरली जब हम कोस का डिफरेंशिएट करेंगे पहले लगाएंगे पावर रूल, पावर रूल लगाने के बाद वी विल यूज द चेन रूल. ठीक है, देखिए मैं चेन रूल लगाया. अब sin टी का डिफरेंशिएशन cos t बन जाएगा. cos 2t का डिफरेंशिएशन माइनस sin 2t इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2 इंटू टी. अगेन दोबारा फिर चेन लगेगा यहाँ पर और 2t का डिफरेंशिएशन कितना बन जाएगा 2. और ये देखो 2 मैंने यहाँ लिख दिया. cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन था वो माइनस ये रहा. नेक्स्ट स्टेप में वी विल टेक द एलसीएम. एलसीएम लेने के बाद ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया ये हमारा वैल्यू किसकी है, dx बाय dt, which is equation number 1. ठीक है, this is equation number 1. Now we will consider this y also. Again we will do in the same method. हम इसमें क्वोशंट रूल लगाएंगे. क्वोशंट रूल लगाने के बाद अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस cos क्यूब t का डिफरेंशिएशन बनेगा. पहले पावर रूल, पावर आगे, पावर में से a वन माइनस इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos. ठीक है, सिमिलरली cos 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले पावर रूल लगाएंगे, रूट x का 1/2 रूट x इनटू cos का डिफरेंशिएशन. देखा. नाउ इस cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होगा, इस cos का माइनस साइन 2t इंटू 2 होगा. क्यों, चेन रूल से. टेक द एलसीएम. ठीक है, एलसीएम लेने के बाद ये हमारी वैल्यू किसकी है, किसकी वैल्यू है, डी बाई डी टी. ठीक है, अब दोनों को डिवाइड कर दो. अब डिवाइड करने के बाद इसको हम फर्दर सॉल्व करने वाले हैं. कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पर साइन 2t हमारे पास है, इसकी वैल्यू हम
पुट करने वाले हैं 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, अब देखो न्यूमरेटर से क्या कॉमन है, देखो साइन भी कॉमन आ रहा है हमारे पास, cos t भी कॉमन आ रहा है, वो भी निकाल लेंगे कॉमन, ऐसे इन द डिनोमिनेटर, ये साइन cos कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट दिस थिंग। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे फॉर्मूला ऑफ cos टू थीटा। cos टू थीटा फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास cos टू थीटा के दो फॉर्मूलाज हैं, एक ये रहा 2 cos square t minus 1 और दूसरा है 1 minus 2 sin square t। ये 2 cos square t minus 1 we are going to use in the numerator and 1 minus 2 sin square t we are going to use in the denominator। क्यों, देखिए जैसे आपने फॉर्मूला यूज किया and you open the bracket cos into cos square cos cube, ये cos क्यूब t और ये वाला cos क्यूब t हम इसको कंबाइन कर सकते हैं, और नीचे वाले में देखो sin into sin square sin क्यूब, ये sin क्यूब t और ये sin क्यूब t हम कंबाइन कर सकते हैं, इसलिए हमने उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज किया। When you combine the term you will get this thing। अगर आप ध्यान दो फॉर्मूला cos 3 थीटा और sin 3 थीटा, फॉर्मूला ये है 4 cos क्यूब t minus 3 cos t। See the numerator, if we take minus sign common, ये सेम फॉर्मूला बन जाएगा, और डिनोमिनेटर तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला बन गया आपका, तो ऊपर से माइनस कॉमन निकाले क्या बनेगा माइनस cos 3t और डिनोमिनेटर बनेगा sin 3t, ये क्या बन जाएगा माइनस cot 3t एंड दैट विल बी योर आंसर। तो ऐसे प्रूव करने के लिए अगर क्वेश्चन आ जाए तो अब इस तरह से आप प्रूव भी कर सकते हो। सिंप्लीफिकेशन आपको पता होना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन कैसे करनी है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन सबसे सिंपल मेथड है, जो आपका ट्वाइस एंगल था उसको भी सिंगल आप टी में ले आए, ये वाला साइन 2t था इसको भी हम सिंगल टी में ले आए, लास्ट में जाके देखो सब एंगल टी में था, फिर हमने उसको कंबाइन कर दिया। ठीक है, इस तरह से आपने क्वेश्चन को फॉलो करना है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8, again x is equal to a into cos t plus log tan t by 2। again when we differentiate this x with respect to t we are going to use chain rule। log theta का डिफरेंशियल, log x का डिफरेंशियल 1 by x, so log tan t by 2 का 1 by tan t by 2 into differentiation of tan t by 2 by chain rule। in next step अगर हम tan का डिफरेंशिएशन करेंगे t by 2 का डिफरेंशिएशन चेन रूल से इनटू हो जाएगा। देखिए ठीक है, नाउ कोट क्या होता है cos अपॉन साइन, सेकंड स्क्वायर 1 अपॉन cos स्क्वायर, t बाई 2 का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2, एक स्क्वायर cos से कैंसिल हो जाएगा और यू विल गेट 2 sin t बाई 2 cos t बाई 2, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, वो 2 थीटा वाला 2 और थीटा के अंदर t बाई 2, वो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और आपका क्या आंसर आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका sin t। एलसीएम ले लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बनेगा cos स्क्वायर, सो वी कैन राइट डाउन a into cos स्क्वायर t अपॉन sin t। ये वैल्यू किसकी आई है, अभी सिर्फ हमने dx by dt की है। अब हम y को डिफरेंशिएट करते हैं, y का डिफरेंस डायरेक्ट हो जाएगा बिकॉज y तो डायरेक्ट a sin t है, उसका डायरेक्ट डिफरेंशिएट क्या बन जाएगा a into cos t। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा सिंप्लीफाई करके वही आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपने ध्यान देना है, क्वेश्चन किस तरह सोल्व करना है इसके अकॉर्डिंग ही सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10, यू आर गिवन दैट x इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा। दिस थीटा sin थीटा को ध्यान से देखना, व्हेन वी डिफरेंशिएट दिस x, जब हम इस थीटा sin थीटा को भी डिफरेंशिएट करेंगे वी विल यूज प्रोडक्ट रूल। सेम y के अंदर भी जब हम डिफरेंशिएट करेंगे हम यहाँ पर भी क्या करने वाले हैं, प्रोडक्ट रूल को यूज करने वाले हैं। देखो प्रोडक्ट रूल क्या होगा, थीटा एज इट इज साइन थीटा का डिफरेंशिएशन प्लस साइन थीटा एज इट इज थीटा का डिफरेंशिएशन। सिंपली डिफरेंशिएट कर देते हैं, थीटा साइन थीटा और माइनस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और यू विल गेट a इंटू थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, सिमिलरली हम y को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अगर आप y को डिफरेंशिएट करेंगे अगेन वी विल यूज प्रोडक्ट रूल, ओपन द ब्रैकेट डिफरेंशिएट करो, देखो माइनस कोस प्लस कोस कैंसिल हो गया एंड यू विल गेट a इंटू थीटा इंटू साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप में दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करते ही आपका जो आंसर होगा दैट विल बी दिस tan थीटा। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है इस तरह का, x इक्वल टू रूट a साइन इनवर्स a रेज़ टू पावर साइन इनवर्स t। इस रूट को हम पावर हाफ बना लेंगे,
ए आपने एक फॉर्मूला क्लास 10th में किया था, a रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर n a रेज़ टू पावर mn। सो पावर की पावर अगर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो नेक्स्ट टाइम में मैंने पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब क्योंकि चाहो तो आप इसको सिंप्लीफाई डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट अगर मैं इसको log लेके करूँ थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफाई आसान हो जाएगा। देखिए मैंने पहले x के टर्म को कंसिडर किया, नाउ वी विल टेक log ऑन बोथ साइड। When you take log on both sides, this a raised to power half sin inverse t, this comes to the in front, और हमारा आ जाएगा a बन जाएगा log a। When you differentiate this, ये देखो log a कांस्टेंट है, हाफ भी कांस्टेंट है, हम सिर्फ इस sin inverse t का डिफरेंशिएट करने वाले हैं। लेफ्ट हैंड साइड में तो log x था, उसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा 1/x into dx/dt, एंड राइट साइड में sin inverse t का डिफरेंशिएट करेंगे which is √1/1 minus t square। ठीक है, क्लियर। आगे बस दोनों को कंबाइन कर देते हैं टर्म्स को, कुछ नहीं है, इसको सिंपली कंबाइन कर दिया, आपके पास ये आ गया। सिमिलरली हम y को डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए पहले log लिया, पावर आगे आ गई, डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएट करने के बाद कोस इनवर्स का डिफरेंशिएशन -1/√1 minus t square, टर्म को कंबाइन कर दो, और नेक्स्ट स्टेप में इस dx/dt और dy/dt को डिवाइड कर दो, यू विल गेट dy/dx, जो हमें प्रूव करना था, -y/x, ये हमें प्रूव करना। ठीक है, तो यहाँ इसके बेस पे मैं क्वेश्चन अपने ख़त्म करता हूँ। ये एक्सरसाइज काफ़ी आसान है। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड बी सेफ फ्रॉम कोविड। मास्क का यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू।